Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, children, today we are going to start our eighth chapter, and its name is World of AI. So, bachcho, now we already know that what is AI. AI is artificial intelligence, right? So, we have to, in this chapter, we are going to learn about the world that is full of AI. Okay, so let's explore and let's dive into the chapter. Okay, so let's begin. The capacity to adapt new circumstances and learn new things is intelligence. इंटेलिजेंस क्या होता है बच्चों, जो कि नेचुरली हमारे अंदर प्रेजेंट है, वो ये है कि न्यू सरकम जो नए सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें अडेप्ट करना, ठीक है, और नई चीजों को सीखना। जैसे हम अगर कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे सीखते हैं, राइट, तो इसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं, समझदारी कहते हैं, ठीक है। So it may appear like a computer or robot is intelligent when it uses a language or solves problems. So this intelligence is not the same as human intelligence, though we refer to it as AI or artificial intelligence. ठीक है, तो बच्चों जब ये इंटेलिजेंस हमारे किसी कंप्यूटर या रोबोट में आ जाती है उसको कहा जाता है एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज ये आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये हम क्रिएट करते हैं, राइट, ये नेचुरली नहीं है जो कि हमारे अंदर है। हमारी इंटेलिजेंस को बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इसको इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। Written instructions are the source of artificial intelligence. Programs are what these instructions are called. Computers employ programs to swiftly analyze and examine vast volumes of data. Then users select responses or actions from the variety of options. Computer programs can be used for developing computers, interpreting languages, playing games, and even making it medical choices. So, stated differently, AI is the capacity of a machine। तो बच्चों बेसिकली एआई इज द कैपेसिटी जिसमें मशीन जो होती है वो और कंप्यूटर प्रोग्राम टू रीजन एंड एक्वायर न्यू skills. Additionally, research in its area aims to develop smart computers. Let's look at the example to get a basic understanding of this. So how does an autonomous vehicle operate? So the device is educated to comprehend how individual operates a vehicle. So machines learn from historical data. ठीक है, now let's see some benefits of AI. Advantages क्या है बच्चों एआई के? पहला है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। बच्चों एआई की हेल्प से हम एरर रिड्यूस कर सकते हैं और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं। सो एआई मेक्स एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड प्रीवियसली एंड एल्गोरिथम्स। तो एआई बच्चों किस बेसिस पे डिसीजन लेता है? वो पहले के जो भी डिसीजन है, पहले की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन है वो लेता है, ठीक है। इफ प्रॉपरली प्रोग्राम दीज एरर्स आर मिनिमाइज। अगर अच्छे से बच्चों प्रोग्राम किया जाए तो ये एरर्स जो है इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। Zero risk. Humans can avoid many risks by assigning tasks to AI robots. Machines with mental bodies are resistant and can survive unfavorable atmosphere, whether they are diffusing a bomb, traveling to space, or exploring the deepest sections of the oceans. Furthermore, there can be delivered accurate work with higher responsibility and are less prone to wear and tear. ठीक है, नेक्स्ट है 24/7 अवेलेबिलिटी। तो बच्चों एआई क्या है? इट कैन ऑल्सो वर्क एंडलेसली विदाउट ब्रेक्स। अनलाइक ह्यूमंस बच्चों ये थकता नहीं है, ठीक है। वी गेट टायर्ड राइट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन नॉट वर्क 24/7, but this is a machine with intelligence, so it can work for 24/7. So they think much faster than humans and perform multiple tasks at this time with accurate results. They can even handle tedious repetitive jobs easily with the help of AI algorithms. Okay. Next है digital assistants. Digital assistants बच्चों यूज किए जाते हैं by some highly developed firms to communicate with users, eliminating the requirement for human resource. Many websites also use digital assistants to deliver content that consumer request. So you can discuss our search with them in conversation. अब आता है न्यू इन्वेंशंस। एआई हैज हेल्प्ड इन कमिंग अप विद न्यू इन्वेंशंस इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन टू सॉल्व complex problems. AI can help solve problems by providing insights from data
and then use that data to make better decisions. नेक्स्ट है बच्चों फास्टर डिसीजंस, ये डिसीजन काफी जल्दी ले पाता है। ठीक है, हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रोबोट्स बनाने के लिए जो कि डिसीजंस ले पाते हैं, डिसीजन मेक कर पाते हैं एंड रिस्पॉन्ड कर पाते हैं इन अ मोर क्विकली मैनर देन द ह्यूमन वुड। ठीक है, ह्यूमन डिसीजन मेक्स एरर makers consider a variety of aspects both practically and emotionally, but AI powered जो machines होती हैं वो एक programmed process का use करती हैं और outcomes produce करती हैं more quickly। ठीक है, daily application बच्चों, this is your next advantage। डेली एप्लीकेशन जैसे कि एप्पल सीरी, विंडोज कॉर्टोना, गूगल ओके, ठीक है, गूगल आर फ्रीक्वेंटली यूज इन आवर डेली रूटीन वेदर इट इज फॉर सर्चिंग अ लोकेशन, टेकिंग अ सेल्फी, मेकिंग अ फोन कॉल, रिप्लाइंग टू अ मेल एंड मेनी मोर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई कैसे हमारे हर काम में हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एआई यूजिंग इन आवर डेली बेसिस। सो बच्चों एआई जो है इसके काफी सारे सोर्स ऑफ range of application है as we have discussed above in our daily life, so some of them are given below। पहला है बच्चों using smart devices, mobile banking, using face recognition, using search engine, streaming videos and songs, then navigating maps। ठीक है, now let's see the difference between AI and HI, human intelligence and artificial intelligence। अब बच्चों इंटेलिजेंस प्लेज अ वाइटल रोल वेदर इट इज ह्यूमन और आर्टिफिशियल, ये तो हम अब तक जान चुके हैं दैट इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड टू मेक डिसीजंस। ओके, सो चाहे वो ह्यूमन हो या आर्टिफिशियल हो, बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। एआई मशीन्स बच्चों डिपेंड होती है ऑन द डेटा दैट आर गिवन टू देम। ठीक है, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द डेटा। ठीक है, दे जस्ट यूज देयर ब्रेन पावर। एआई बच्चों ज्यादा टाइम लेता है एडजस्ट करने के लिए बिकॉज वो काफी जल्दी बच्चों जो चेंजेस हैं उस पे वो नहीं कर पाता है। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं वो काफी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को। ठीक है, मशीन्स बच्चों काफी ज्यादा डेटा हैंडल करती है एट अ स्पीडियर रेट, whereas humans बच्चों we cannot beat the power of the speed of computers। एआई बच्चों एम करता है मशीन्स बिल्ड करने में दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, and perform human like actions, whereas human intelligence aims to adapt to a new environment by utilizing a combination of different cognitive processes। Now let's see some kinds of AI। So based on the capabilities बच्चों AI जो है वो डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI। वीक AI बच्चों इसको हम नैरो AI भी कहते हैं। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ AI है दैट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया ओनली। Machines powered with weak AI are designed to perform a particular task with intelligence. So the digital assistant like Google Assistant, Alexa, Siri, it represents the weak AI। ठीक है, on the other hand, what is strong AI? So strong AI को बच्चों full AI भी कहते हैं। Machines powered with strong AI have the mind of their own। These machines can think and accomplish multitask on their own। Sci-fi movies जैसे कि बच्चों टर्मिनेटर, आई रोबोट, इसमें स्ट्रॉन्ग एआई का काफी ज्यादा यूज किया गया है। एडवांस रोबोटिक्स जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर ही इस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं आप। एआई रोबोटिक स्ट्रक्चर सोफिया, तो बच्चों ये एक एआई बेस्ड रोबोट है। ठीक है, जो कि रियल में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको क्रिएट किया गया है। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। ठीक है, सोफिया एक ह्यूमन लाइक रोबोट है बच्चों जो कि मार्क की गई थी विद द बिगनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई डिपिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ एडवांस्ड रोबोटिक्स एंड एआई रिसर्च। ये डेवलप की गई है बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी विच इज हैंसन रोबोटिक्स। ठीक है, सोफिया बच्चों बनाई गई है विद लेटेस्ट एडवांसेस इन एआई। ठीक है, इट वाज एक्टिवेटेड, ये सबसे पहले स्टार्ट की गई थी February 14, 2016 में, इस दिन इसको एक्टिवेट किया गया था। ठीक है, द रोबोट हैज बीन डिजाइन टू लर्न एंड अडेप्ट टू ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क विद ह्यूमंस। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों ह्यूमन बिहेवियर को अडेप्ट करती है, उनको इमिटेट करती है। ठीक है, उनकी तरह एक्सप्रेशन सिखाती है। ठीक है, तो बेसिकली बनाई गई है टू वर्क विद ह्यूमंस। सोफिया हैज आल्सो बीन इंटरव्यूड अराउंड द वर्ल्ड, बच्चों इसके काफी सारे इंटरव्यू प्रेजेंट हैं। ठीक है, वीडियोस प्रेजेंट है, यू कैन आल्सो चेक इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, अक्टूबर 2017 को बच्चों सोफिया को सिटीजनशिप भी मिली है सऊदी अरेबिया की।
इट मीन्स सोफिया जो है पहली रोबोट है बच्चों जिसको सिटीजनशिप मिली है कंट्री की। हर एबिलिटी टू इमिटेट ह्यूमन। बच्चों ये काफी ज्यादा अच्छे ह्यूमन जेस्चर्स शो करती है, ठीक है, मेक्स हर वन ऑफ अ काइंड, जो कि इसको काफी यूनिक बनाता है। सो शी स्पीक्स सॉफ्टली एंड इंटेलिजेंटली। Sophia became very popular and gained many fans by impressing people. So, with the evolution of science, one could imagine the fictional dreams to become a reality with this unstoppable journey of AI. तो यहाँ पे बच्चों विद सोफिया ये तो बस एक स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमें बताता है कि फ्यूचर कितना ज्यादा एडवांस होने वाला है, एआई का बच्चों कितना ज्यादा यूज होने वाला है हमारे वर्ल्ड में, और कैसे बच्चों एआई हमारे वर्ल्ड को बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया हो। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।